Hello students, welcome class of Bridge course. Today we are going to learn activity number 25. So let's start. Evaluation. So what are going to learn today? Competency allow statement number 13 to converse effectively in different social contents and real life situation. अलग अलग मौक़ों पर असरदार बातचीत करना जो समाज से जुड़े हुए हैं और असली हकीकी ज़िंदगी से वाबस्तगी रखते हैं. एक्टिविटी नंबर 1 दी गई है और इसमें डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ. यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स के लिए. स्टूडेंट विल फॉलो द एरियाज टू बी कवर टू कम्युनिकेट एंड कन्वर्स फ्लुएंटली and will acquire strategies such as listening, comprehension, turn taking and eye contact explained by the teacher. तलबा व तालिबात को कम्युनिकेट कन्वर्स करना है साफ़ तरीके से और अच्छे से सुनना है और जो मवाद दिया गया है उसको पढ़ना है. लर्निंग एक्टिविटी दी गई है कन्वर्सेशन. सो इट इज़ द कन्वर्सेशन. ट्री, pigeon, sparrow, है ना. So this is the conversation about different characters are here. Now let's take a look. Conversation. Tree. Hey sparrow. Hi pigeon. How are you both? How to see you in my garden after a long time. Pigeon. Just surviving. Sparrow. Absolutely true. Tree. Where were you all these days? Sparrow. Forget about us. Look at yourself. A few leaves to be counted. Tree. Yes, these men cut my branches of wood. Pigeon. You don't have any fruits for us. Tree. These people pluck my fruits too. Sparrow. Neither you have shadow nor enough water to live for yourself. Tree. All your words are true. I'm just standing with the water that I preserve in my roots. Pigeon. Then how can you give us a place for nest and fruit to eat? Tree. True, these human beings have to suffer for water and fruits without me. Only after that they will realize their blunder. Both the birds, poor humans, may God show them the straight path. Tree. Long live you birds, may God bless you. So this is the conversation. ये बातचीत दी गई है जो लर्निंग एक्टिविटी में ट्री, दरख्त, कबूतर, चिड़िया के दरमियान और इंसान का उनसे कैसा रिश्ता है और इंसान कैसा बिहेव कर रहे हैं उनके साथ जो है, इस चीज़ को लेकर कन्वर्सेशन यहाँ पर की गई है. सो दिस इज़ द लर्निंग एक्टिविटी. नाउ लेट्स टेक अ लुक एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट. सो what is the parallel or reinforcement activity? Teacher will instruct students and encourage them to write conversation of minimum 5 meaningful exchanges among 3 to 4 students on importance of listening stories on their own. तो आपको क्या करना है, तलबा व तालिबात को कम से कम 5 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस यानी तबादला ख़याल या कन्वर्सेशन, हर एक के 5 डायलॉग्स होने चाहिए. इस तरीके से इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़ पर जो है क्या करना है, कन्वर्सेशन जो है तैयार करनी है. तो यहाँ पर उसका आंसर दिया गया है. रमेश एंड सुरेश बोथ आर टॉकिंग अबाउट. रमेश. हाय सुरेश, व्हाट आर यू डूइंग? सुरेश. हाय रमेश, आई एम लिसनिंग टू अ स्टोरी. रमेश. A story? Do you like listening to stories? Suresh. Yes, I like listening to the stories very much. Don't you? Ramesh. No, I think it's wastage of time. In that time, I can easily watch a movie. Suresh. Yes, you are completely right. But listening to stories help us to enhance our listening power. Listening to stories make us an active listener. Ramesh. Oh, I never thought of it. I will start the habit of listening to stories. Suresh. Very good. You can start it now. Ramesh. From now? Suresh. Yes, you can join me. So Ramesh. Okay, thanks. Suresh.
Suresh, you're welcome. So this is the solved activity we have seen here. And read the conversation between Ramesh and Suresh about the importance of listening story. Now let's take a look. Basic grammar, construction, fluency, pronunciation, expansion of vocabulary and ideas, intonation, confidence, and bold oral presentation. Now, what are we? There are some questions given here. So let's take a look. What are the questions are here? Questions है. What do you understand the conversation skill? रमेश और सुरेश में कन्वर्सेशन में हमने क्या सीखा? कन्वर्सेशन का मतलब क्या है? कन्वर्सेशन इज इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. It is a most important skill of human beings which help us to exchange our thoughts and emotions. कन्वर्सेशन स्किल का मतलब क्या है? जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1. तो हमने कन्वर्सेशन जो ये फ़न है इसका मतलब क्या है? बातचीत करना, जैसे इंसान अपने जज्बात और एहसासात, अपने ख़यालात जो है एक दूसरे के साथ शेयर करता है. दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशन. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन विल कन्वर्सेशन बिकम इफ़ेक्टिव? कन्वर्सेशन जब बातचीत करते हैं तो वो असरदार कब होती है? व्हेन वी लिसन अदर्स केयरफुली एंड अंडरस्टैंड्स इमोशंस एंड इंटेंशंस बिहाइंड इट. जब हम एक दूसरे के ध्यान से, तवज्जो के साथ एक दूसरे के एहसासात और जज्बात को समझते हैं, देन वी शुड यूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू कन्वे अवर मैसेज. और जो अपना मैसेज है, जो पैगाम, हम मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके उस पैगाम को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो तब वो इफ़ेक्टिव बनती है बातचीत. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ लिसनिंग इन कन्वर्सेशन? कन्वर्सेशन करते वक्त सुनना, समाअत करना कितना ज़रूरी होता है? Listening is important part of any conversation. It helps to better understand the viewpoint of the other party or the speaker. More than half of the conversation or communication is paying attention to and understanding the other side. सामने वाला क्या कह रहा है कन्वर्सेशन में, ध्यान से सुनना बहुत अहम होता है. अगर हम सामने वाला जो भी कन्वर्स कर रहा है, जो भी टॉक कर रहा है हमारे साथ जो है, उसको तवज्जो के साथ जब हम सुनेंगे तो उसका मैसेज और उसकी बातों को अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे. इसीलिए हमें ज़्यादा तवज्जो के साथ, ध्यान देकर, अटेंशन के साथ सामने वाले की बातों को सुनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ग्रेट चैलेंजेस टू गुड कन्वर्सेशन? देयर आर सो मेनी चैलेंजेस टू गुड कन्वर्सेशन. दीज आर एज फॉलोज. एक अच्छी कन्वर्सेशन को बनने के लिए जो है कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना होता है? नंबर 1, लैंग्वेज बैरियर. अगर हम सामने वाले की ज़बान को नहीं समझ सकते, या कोई फॉर एग्जांपल हम कन्नड़, हमें भाषा नहीं, ज़बान नहीं आती है, तो वो कन्नड़ में जो बोल रहा है सामने वाला, उसको हम लोग समझ नहीं सकते, तो ये बिग चैलेंज है अपने लिए. लैक ऑफ क्लैरिटी. सामने वाला जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है वो हमें साफ तौर से सुनाई न देना. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की जो है कमी होना. फियर, डर होना. लैक ऑफ वोकेबलरी और ज़ख़ीरे अल्फाज न होने की वजह से ये चैलेंजेस फेस करना होता है कन्वर्सेशन के दौरान. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू इम्प्रूव ओरल प्रेजेंटेशन थ्रू कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन के ज़रिए हम लोग अपने ज़बान को, अपने ज़बानी जो है प्रेजेंटेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आई कैन इम्प्रूव ओरल प्रेजेंटेशन थ्रू कम्युनिकेशन. जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा. नंबर 1, फॉर डिलीवरिंग ऑर्गेनाइज थाट्स. हमारे ख़यालात सामने वाले के सामने रखना. हैविंग क्लैरिटी इन वर्ड्स. जब भी हम कोई सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, उन वर्ड्स को साफ तरीके से बोलना. स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस. जब भी हम बोलेंगे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना. डिफाइनिंग टर्म्स विथ प्रॉपर वर्ड्स. और सही अल्फाज का सही जगह पर इस्तेमाल करना. सो दीज आर oral presentation through communication. Now, so these 5 questions we have solved here. So this is the activity number 25. Thanks for watching.